Hello guys, welcome back on my YouTube channel. My name is Harpreet Singh and you are watching Commerce EduTech. Today we are going to discuss a new topic from plus 2 accountancy and the topic is adjustment of capital. This is the last topic from admission of a new partner. So let's start our topic. What is adjustment? Adjustment है कि और किन्नी टाइप ਦੇ ਵਿੱਚ adjustment ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. There are two types of adjustments are made in the capital accounts of the partners. ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ adjustment ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕੀ ਹੈ? When capital of old partners shall readjust on the basis of capital brought in by new partner. ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ old partners ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਰੀਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇ ਫॉर एग्जांपल ਕਿ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫਟਰ ਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2:1 ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਤੋਂ ਡਬਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਗਾ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਐਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੈਨ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ੈਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਐਡਜਸਟਡ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਗਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਐਡਜਸਟਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੰਡ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਵੰਡ ਲਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ ਸ਼ੈਲ ਰੀਐਡਜਸਟ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਬ੍ਰੌਟ ਇਨ ਬਾਈ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਆਪਾਂ ਉਠਾਣੇ ਆ ਫਸਟ find out the total capital of the firm on the basis of new partners capital ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੇ ਫॉर एग्जांपल ਕਿ ਸੀ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ 1/4 ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ that represent to 1/4 ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੀਅਰ 1/4 ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ 100% 1/4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ 25% ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 25% ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ 100% ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਮੀਨਸ ਰਿਵਰਸਲ 1/4 ਹੈ ਤਾਂ 4/1 ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ 4 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ ਤੇ ਇਹੀ ਫਰਮ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆਈ ਆ ਫਰਮ ਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ 4 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਲ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨ देयर ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਮੰਨਿਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਣਗੇ ਏ ਔਰ ਬੀ ਦੇ ਉਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਾਂ ਸਰਪਲਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨਵੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜਾਂਗੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਔਰ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੈਲੈਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਐਡਜਸਟਡ ਥਰੂ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਪਲਸ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਕਰ ਗਿਆ मतलब कि एग्जिस्टिंग कैपिटल इज लेस दैन द रिक्वायर्ड कैपिटल
ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਮੰਗਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਡੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟੂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਨੈਕਸਟ, ਇਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੈਪੀਟਲ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਡੈਬਿਟ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ A and B ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਨਰਸ, देयर कैपिटल अकाउंट शोज बैलेंस ऑफ 3 ਲੱਖ एंड 2,50,000। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। C ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ 1/4 ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। A and B wants to readjust their capital according to the capital of C। C ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਰੀਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਚੇਗੀ ਉਹ ਮੈਟ ਵਿਦ ਕੈਸ਼, ਉਹ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਆਏਗੀ 3:3:2। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ C's कैपिटल। C कितनी कैपिटल लैके आया, 2 ਲੱਖ रुपीज़ फॉर 1/4 शेयर। रेसिप्रोकल किया तो फर्म की टोटल कैपिटल निकली दैट इज़ 8 ਲੱਖ रुपीज़। इस नूं असीं न्यू रेशो च वंड दिता। A का शेयर कितना निकलिया, 3 ਲੱਖ रुपीज़ और B का शेयर कितना निकलिया, 3 ਲੱਖ रुपीज़। और अगर असीं ओल्ड कैपिटल नाल कंपेयर किया तो A की ओल्ड कैपिटल 3 ਲੱਖ सी लेकिन B की ओल्ड कैपिटल 2,50,000 सी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਓਲਡ ਕੈਪੀਟਲ ਚੱਕਦੇ ਆ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਐਡਜਸਟਡ ਕੈਪੀਟਲ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਸੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਲੱਖ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ए ਦਾ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਓਲਡ ਤੇ ਨਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। लेकिन B ਦਾ जो कैपिटल बनती है आफ्टर एडजस्टमेंट्स, मतलब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट देता, रिजर्व बन देता, सारा कुछ कर लिया, उस दी कैपिटल बनती है 2,50,000 जो कि 3 ਲੱਖ रुपीज़ तो घट है। कितनी, 50,000। तो असीं की करांगे, उस तो कैश मंगवा लांगे। कैश अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल। ये जर्नल एंट्री जिहड़ी है पेगी। नैक्सट केस की है, केस नंबर 2, वैन new partner will bring proportionate capital on the basis of adjusted capital। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਐਡਜਸਟਡ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੈਪਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊ ਫਰਮ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੈਕਨੀਕ। ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਡਜਸਟਡ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਉਠਾ ਲੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਡ ਕਰਤੇ, ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਜੋ ਗੁੱਡਵਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੀਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਐਡਜਸਟਡ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰਸ। और असी उस मल्टीप्लाई किस नाल करना है, रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो कंबाइंड का इत्थे की मतलब कि अगर असी एग्जाम्पल लई सी कि सी जिहड़ा है 1/4 पार्ट दे लई आया, फर्म दे कोल हिस्सा कितना हुंदा है 1, 1 माइनस 1/4 कितना बचदा है 3/4। ਇਹਦਾ मतलब A और B ਜਿਹੜੇ है दोनों ਉਹ 3/4 शेयर ਨੂੰ शेयर कर रहे हैं। फर्म ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 3/4 ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, A and B ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਨਰਸ, देयर कैपिटल अकाउंट शोज बैलेंस आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशनस। सारियां एडजस्टमेंट्स करन तो बाद A ਦੀ कैपिटल बन रही सी 3,50,000,
ਤੇ B ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ 2,50,000। C ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 1/4 ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਜਸਟਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਐਡਜਸਟਡ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 350 + 250, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਜ਼ ਐਡਜਸਟਡ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ C ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1/4 ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਰਮ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕੰਪਲੀਟ 1 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਬਚਿਆ 3/4 ਬਚਿਆ, 75% ਬਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਉਹ 3:3:2 ਹੈ। मतलब कंबाइंड शेयर ऑफ A एंड B विल रिप्रेजेंट 3/4 पार्ट। जो A और B देखो ਹੁਣ टोटल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 75% ਵੰਡਿਆ ਫਰਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 25% ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ C ਨੂੰ, ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ 75 ਬਚਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ A ਔਰ B ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, जो कंबाइंड कैपिटल है 6 लाख रुपया, ये किस नू रिप्रजेंट कर रहा 3/4 पार्ट नू। सो असी रेसिप्रोकल करके फॉर्म दा टोटल पार्ट कढ लेना है। की करांगे 4/3, तो टोटल कैपिटल कितनी निकली 8 लाख रुपीज़। और C दी कैपिटल कितनी निकलूगी, हुण असी इसदा 1/4 कर लांगे, तो C दी कैपिटल कितनी आई 8 लाख मल्टीप्लाई 1/4 दैट इज़ 2 लाख रुपीज़। ये दोनों टैक्नीक्स ने कि अगर पुराने पार्टनर एडजस्टमेंट करते हैं तो किमें की जाऊगी, अगर न्यू पार्टनर जिहड़ा है वो एडजस्टड कैपिटल का कुछ पार्ट लैके आऊगा तो वह किमें लैके आऊगा। ठीक है, दोनों नूं असी कैश दे विच ट्रीटमेंट जरूर करना है। अगर पुराने पार्टनर्स नूं कुछ वापस किया तो कैश चों माइनस हो जाएगा नवीं बैलेंस शीट च, अगर वो लैके आया तो वह असी कैश दे विच ऐड कर लांगे। और जो नवा पार्टनर प्रपोर्शनेट कैपिटल लैके आया दैट इज़ 2 लाख रुपीज़, ये भी ऑटोमैटिकली जाके कैश दे विच ऐड हो जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं आप इस दे उपर एक कंप्लीट। A एंड B आर पार्टनर इन अ फर्म विद इक्वल राइट्स। C एडमिट हो गया फर्म दे विच 1/5 शेयर दे लई फॉलोइंग एट द बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट दिते हैं दोनों दे 1 लाख ईच। उस तो बाद रिजर्व एंड सरप्लस पिया। C का लोन है 10% पर एनम। देखो ये यही C है जो एडमिट होया। और साढ़े कोल पुरानी गुडविल पई है, फिक्स एसेट्स है, कैश है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस खड़े हैं। एडजस्टमेंट्स की दित्तियां, देयर इज़ अ लैंड, जो टोटल फिक्स एसेट्स दित्तियां होईयां इन्हां दे विच ही एक लैंड नाम की एसेट है जो कि इनक्रीज़ कर गई 20,000 नाल। तो इसे दे विच एक फर्नीचर नाम की एसेट है जो कि डेप्रीशिएट होगी 2000 के नाल। देखो ये सारा रीवैल्यूएशन का फंड है। उस तो बाद की है इंटरस्ट ऑन सीज लोन वाज अनपेड फॉर लास्ट 6 मंथ। सी का लोन कितना है 80,000, उसका 10% पूरा साल का इंटरस्ट कितना बनता है 8,000। अगर 6 मंथ का पेंडिंग पिया तो कितना हो जाऊगा 4,000। वो पेंडिंग है मतलब आउटस्टैंडिंग है, साड़ी एक लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। उस तो बाद अ लाइबिलिटी फॉर डैमेज, फर्म के उपर एक लाइबिलिटी पैगी, उसनू फर्म ने एडमिट कर लिया 4,000 दे विच। इट इज़ डिसाइडेड दैट लोन ऑफ C विल ट्रीटेड एज हिज कैपिटल, कि C का जो लोन खड़ा साढ़े को 80,000 इसे नू असी उहदी कैपिटल मान लिया। और गुडविल जिहड़ी फर्म दी दैट इज़ 50,000 ये भी सानू देती। C विल ब्रिंग हिज शेयर इन कैश, वो अपना गुडविल का हिस्सा लैके आऊगा कैश दे विच। और केस नंबर 1 A एंड B डिसाइड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ C's कैपिटल। केस नंबर 2 व्हाट विल बी योर आंसर इफ लोन विल नॉट ट्रीट एज हिज कैपिटल एंड C will bring proportionate capital on the basis of adjusted capital of A and B। दोनों केसेस दे नाल आपां इस क्वेश्चन नू सॉल्व करना है। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं आप। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप नवी रेशो फाइंड आउट करनी है। किवें करांगे, टोटल हिस्सा कितना फर्म का 1, उस दे विचों C किन्ने हिस्से लई आया 1/5 लई, रिमेनिंग पार्ट कितना बचया 4/5। इस नूं असी इक्वल राइट्स दे विच वंड दो, कितना आएगा 4/4/2। न्यू रेशो कितनी आ गई 2:1।
और सैक्रीफाइस रेशो विल बी इक्वल। जिवें मैं कहा सी तुहानूं कि जदों इस तरह का क्वेश्चन आ जाता हुंदा तो सैक्रीफाइस जिहड़ी हुंदी है ओल्ड रेशो दे इक्वल हो जाती है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने आ, लैंड इनक्रीज़ कीती सी 20,000 नाल, फिक्स एसट दे विच फर्नीचर डाउन होया सी 2,000 नाल, लोन का इंटरस्ट पेंडिंग खड़ा सी, अपने कोल एक नवी लाइबिलिटी खड़ गई 4,000 की, डैमेज क्लेम की एक लाइबिलिटी एक्सैप्ट की है फर्म ने, दैट इज़ 4,000 रुपीज़। हुण असी माइनस किया तो की बचिया साडे कोल 10,000 का प्रॉफिट बचिया, वो असी की कीता ए एंड बी दे विच इक्वली डिवाइड कर दिता। हुण गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 50,000, शेयर ऑफ सी, हुण इसका 1/5 किया तो सी का शेयर कितना निकलेगा 10,000। हुण ए वो लैके आया कैश दे विच, जर्नल एंट्री की बनती है कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी डेबिट टू सैक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ डिवाइड कर ਦਾਂਗੇ। ओल्ड गुडविल एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस शैल डिवाइड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो साडे कोल पुरानी गुडविल है तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस है, मतलब फिक्टिशियस एसेट टाइप कुछ ऐसा है, तो असीं उसनूं न्यू पार्टनर तक नहीं लैके जावांगे, नवीं बुक्स के अंदर नहीं जाएगी, वो सारे का सारा पुराने पार्टनर्स के विच राइट ऑफ कर दिता जाएगा। कैपिटल अकाउंट असी प्रिपेयर करते हैं। हुण कैपिटल अकाउंट के विच ओपनिंग बैलेंस ऑफ ए एंड बी 1 लाख ईच, सी दे लोन नूं असी इत्थे डिस्पोज ऑफ कर दिता, खत्म कर दिता, और कदे च पा लिया सी उहदी कैपिटल अकाउंट च ट्रांसफर करता। और जो रिजर्व खड़े सी 50,000 दे वो असी ए और बी दे विच इक्वली डिवाइड कर दिते। सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 का जो सी लैके आया वो भी असी ए और बी दे विच डिवाइड कर दिता। रीवैल्यूएशन तो जो सानू प्रॉफिट बचा सी 10,000 का वो भी असी दोनों च बराबर वंड लिया, ठीक। और गुडविल जो कि पुरानी सी 20,000 की वो भी असी बराबर वंड दी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस सी वो भी असी राइट ऑफ कर दिते। हुण असी की करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट कर लेनी है। देखो क्लोज नहीं करना क्वेश्चन नूं, पहला कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं होणगे, उस तो पहला असी की कर लेना एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि सी दी कैपिटल जो सी 80,000 उन्होंने बेस मानते हुए पुराने पार्टनर अपनी कैपिटल रीएडजस्ट कर रहे हैं। 80,000 लैके आया सी फॉर 1/5 शेयर के लिए, तो असी की कीता रेसिप्रोकल करके फर्म की कैपिटल कट ली, दैट विल 4 लाख रुपीज़। हुण ए दा न्यू शेयर कैपिटल कितना आएगा, 4 लाख मल्टीप्लाई 2/5, नवी रेशो डिवाइड कर दिता 1,60,000। बी का कितना आया, वो भी 1,60,000। सी का ऑलरेडी 80,000 है ही है। ये जो बैलेंस नवे आए आ, इसनूं इत्थे असी क्लोजिंग बैलेंस के तौर के उपर लिखना है, और यही बैलेंस जिहड़े है इत्थों शिफ्ट होणगे बैलेंस शीट के अंदर। हुण जदों असी कंपैरिजन किया कि जो साडे कोल इस साइड के उपर सारिया आइटम्स पईयां सी, इन्हां नूं टोटल कर लिया, टोटल करके जदों असी आ 2 आइटम्स चों माइनस कीतियां और जदों नूं कंपेयर किया 1,60,000 नाल, तां वो कैपिटल घट गई। कितनी घटी, 45,000। तो 45,000 ए तो मंगवाया गया। इस तरह सी बी का टोटल कर लेना, ओदी भी कैपिटल 45,000 घट गई, तो वो उस तो मंगाया गया। तो दोनों पार्टनर्स ने की किया 45,000 ईच लैके आए। जर्नल एंट्री की बन गई कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो असी शिफ्ट कर दिते। रिजर्व वंडिया गया सी, उस तो बाद की है सी दी कैपिटल असी इत्थे शिफ्ट कर दी। इंटरस्ट ऑन सीज लोन 4,000, क्योंकि इंटरस्ट जो लोन सी उन्होंने असी कैपिटल च कन्वर्ट करता, लेकिन जो इंटरस्ट है वो तो असी पेंडिंग रखांगे जब तक असी उसनूं पे नहीं कर देंगे। सो 4,000 का जो इंटरस्ट है उन्होंने असी शिफ्ट कर लिया। लाइबिलिटी फॉर डैमेज क्लेम जो नवी लाइबिलिटी राइज हुई है वो असी शिफ्ट करती। फिक्सड एसेट्स नूं असी रीवैल्यूड कर लिया कि जो घटियां सी उसनूं घटाता, जो वधी सी उसनूं असी वधा लिया। उस तो बाद साडे कोल है गुडविल सी खत्म हो गई, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस सी खत्म हो गए। कैश दे विच की चेंजिस आईयां, कैश का ओपनिंग बैलेंस खड़ा है, उस तो बाद 10,000 रुपीज़ जो कि अपना गुडविल का प्रीमियम लैके आया। उस तो बाद 45,000 ब्रॉट इन बाय ए एंड 45,000 ब्रॉट इन बाय बी।
जो कैपिटल डेफिशिएंसी बचती सी। और कैश का टोटल बैलेंस कितना हो गया 2 लाख रुपीज़। टोटल ऑफ द बैलेंस शीट आपस ਦੇ ਵਿੱਚ मैच कर गया वो की है 4,08,000। एसेट ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ दोनों आपस ਦੇ ਵਿੱਚ मैच कर गई। ਹੁਣ अगर ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ कि जो न्यू पार्टनर है वो अगर प्रपोर्शनेट कैपिटल लैके आने ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਵੈल्यूएशन अकाउंट सेम ਰਹੂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाएंगे। किवें चेंज होने आ, ओपनिंग बैलेंस असी दोनों दे एज इट इज़ रख लेने, रिजर्व असी दोनों दे विच वंड दिते, सिक्योरिटी प्रीमियम जो सी वो असी वंड दिता, रीवैल्यूएशन दा प्रॉफिट असी वंड दिता, गुडविल डिवाइड कर दी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डिवाइड कर दिते। हुण इत्थे असी बैलेंस कढ लेना है, ए साइडां दा असी टोटल कर लेना, टोटल करके इहदे विचों आ दो चीज़ां माइनस कर देनियां। ए दा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 1,15,000। इसे तरह बी दा इन्हां दा टोटल माइनस दीज टू आइटम्स, इहदा क्लोजिंग बैलेंस बच रहा 1,15,000। हुण इत्थे असी सी दी कैपिटल लभनी है, वो की है प्रपोर्शनेट कैपिटल। किवें लभूगी, सी आया सी 1/5 पार्ट के लिए, रिमेनिंग पार्ट फर्म के कोल की बचा सी 4/5। हुण जदों असी कंबाइंड कैपिटल फाइंड की वो कितनी है 1,15,000 ऑफ ईच, दोनों ने प्लस किया कितना बनया 2,30,000। हुण जिहड़ा 2,30,000 है रिप्रजेंट करता है इस 4/5 पार्ट नूं। तो फर्म की टोटल कैपिटल लभनी है तो रेसिप्रोकल करांगे किवें 5/4 मल्टीप्लाई किया, फर्म की कैपिटल निकले 2,87,500 रुपीज़। ये फर्म की कैपिटल है। हुण इहदे विच्चों असीं न्यू पार्टनर का हिस्सा लभ लांगे 1/5। तो 1/5 कितना होगा 57,500। ए कैपिटल सी लैके आऊगा। हुण ये साडी लास्ट एंट्री होएगी इत्थे कैश के तौर पर, ठीक है। हुण यही कैश न्यू बैलेंस शीट के अंदर कैश अकाउंट च ऐड हो जाऊगा। कैश का पुराना बैलेंस कितना सी 1 लाख रुपीज़, ये अंदर 10,000 का प्रीमियम जो लैके आया, 57,500 रुपीज़ जो कैपिटल का लैके आया। सो कैश का बैलेंस कितना 1,67,500। बाकी साडा क्वेश्चन सारा सेम रहेगा। हाँ, कैपिटल अकाउंट्स जरूर चेंज हो जाएंगे क्योंकि जो एक्चुअल हुण बैलेंस असी कढ़े आ वो इत्थे शिफ्ट होणगे। हुण सी दा लोन जिहड़ा सी वो एज इट इज़ खड़ा है 80,000 का। इंटरस्ट ऑन सीज लोन वो भी नवी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अगेंस्ट डैमेज क्लेम वो भी 4,000 है। सो जदों असी टोटल लगाया तो टोटल कितना बनया 3,75,500 रुपीज़ एसेट्स ते लाइबिलिटी साइड का। ये अपना एडमिशन का लास्ट टॉपिक सी। अज अपनी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का चैप्टर जो सी क्लोज हो गया, ठीक है जी। सारे क्वेश्चन इहदे बहुत ध्यान नाल करने हैं क्योंकि फाइनल एग्जाम्स दे विच इस दे विचों काफ़ी पेपर कवर हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग द चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।